Hello friends. So now we will cover our next lecture on Indian that is Government of India Act 1919. It is not Indian Councils Act. It is called the Government of India Act. So now hence onwards the act will be known as Government of India Act. So Government of India Act 1919. After 10 years it has come. The previous act was known as Indian Councils Act 1909, which was also known as Morley-Minto Reforms. This Government of India Act 1990 is also known as Montagu-Chelmsford Reforms. Why it was named as Montagu-Chelmsford Reforms? Because Lord Chelmsford was the Viceroy at that point of time, and Lord Montagu was the Secretary of State. So, so it was named same as Indian Council Act 1909. That act was also known as Morley-Minto Reforms. Similarly, in the same way, it was also known as this act was also known as Montagu-Chelmsford Reforms. Okay, so this basically act is very important because what are the main why this act is very important, because by means of this act British government has started giving Indians more representation and giving them self-governing institutions, means where Indians can self-govern themselves. So previously, up till 1909 Act, it was the Britishers who are more into the administrative institutions, executive council as well as legislative council. So they were the members. So because of that, it is the British who are governing the Indian people. But now with this act, the self-governing institutions or Indians were given more representation in the administrative institutions. So the main aim of this act is to introduce responsible government in India. Responsible government in India. ठीक है? And introduction of self-governing institutions. Self-governing institutions. Or you can also say it as more participation of Indians, more participation of Indians in administrative institutions. ठीक है? So that is why this act is very important. So it was the aim of the Secretary of State, that is Lord Montagu, to introduce the self-governing institutions and introduce the responsible government in India. That was the aim of the British government, but with as part of British Empire. तो मांगा क्या था एक्सट्रीमिस्ट ने? स्वराज, कंप्लीट स्वराज, बट मिला क्या? सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस मिले, कुछ पार्ट मिला, कुछ इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया गया, और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम हो गया. तो ये एम था. इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बता देता हूं इस एक्ट के. So important features of this act are important. मैं पहले बता देता हूं. This act introduced direct elections and bicameralism in central level, only in central level for the first time, है ना? तो ये एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? डायरेक्ट इलेक्शंस. अभी तक क्या थे? इनडायरेक्ट इलेक्शंस. इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं कि
आपके मेंबर्स ने कुछ मेंबर्स ने उनको चुना, रिप्रेजेंटेटिव्स को, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने चुना इनको, मेंबर्स ऑफ काउंसिल को। यानी कि मैं डिफरेंस बता देता हूं, अभी तक इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, अभी डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए। तो अभी तक क्या था, सेंट्रल लेवल पे स्पेशल, जनरल एंड क्लास इलेक्टोरेट। तो क्लास का मैंने आपको बताया ही था, लैंडलॉर्ड चुनेंगे और मुस्लिम चुनेंगे, ठीक है। जनरल में जनरल इलेक्टोरेट है, इसमें मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज प्लस प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स प्लस और स्पेशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट फ्रेंचाइज नहीं है, मतलब लोग डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं, ठीक है। सभी को डायरेक्ट चुनने का अधिकार नहीं है। इनको भी केवल लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम्स को था, और इसमें भी केवल उन मुस्लिम्स को था, मैंने आपको बताया था, जिनके पास कुछ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड की प्रॉपर्टी हो या कुछ टैक्स पे करते हो। तो ये क्लास लेवल पे इलेक्टोरेट लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम्स वोट कर सकते थे। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, देन प्रोविंशियल काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड स्पेशल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो अभी तक ये था। डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या हुआ, इसने डायरेक्ट इलेक्शंस दी, यानी कि पब्लिक, जनरल पब्लिक इलेक्ट दी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर दी फर्स्ट टाइम। तो मेजोरिटी जो थी इनकी थी, कुछ इनडायरेक्ट भी थे, कुछ डायरेक्ट थे। तो जनरल पब्लिक डायरेक्टली चूज करती थी। अब इसमें वुमेन को भी दिया इन्होंने फ्रेंचाइज, वुमेन को भी फ्रेंचाइज दे दिया, ठीक है। मुस्लिम्स को तो था ही फ्रेंचाइज, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने सिक्स को भी सेपरेट फ्रेंचाइज दे दिया, प्लस एंग्लो इंडियंस को, प्लस यूरोपियंस को। एंड क्रिश्चियंस को सेपरेट फ्रेंचाइज इन्होंने दिया। और जनरल पब्लिक में वुमेन और मेन ऑब्वियसली, बट इसमें कुछ लिमिटेड फ्रेंचाइज था, ठीक है। मैं इसके बारे में बताऊंगा, बट इसमें डायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज इनके मेंबर्स इलेक्ट कर रहे हैं या प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स इलेक्ट कर रहे हैं। इसमें डायरेक्टली इलेक्शन पब्लिक करेगी। मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एट सेंट्रल लेवल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेवल विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली, ठीक है। दैट इज व्हाई डायरेक्ट इलेक्शंस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड बाइकैमरलिज्म के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये मेन फीचर ये था। अब इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसने डायआर्की इंट्रोड्यूस की थी प्रोविंसेस में, डायआर्की इन प्रोविंसेस। डायआर्की प्रोविंसेस में क्या होता है, डायआर्की प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे। अच्छा, डायआर्की से पहले मैं ये बता दूं, अभी तक क्या होता था, सब्जेक्ट्स जो होते थे उसका कोई डिवीजन नहीं था, यानी कि सेंट्रल का और प्रोविंशियल का, ऐसा कोई सब्जेक्ट का डिवीजन अभी तक ऑफिशियल नहीं था, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे भी वही सब्जेक्ट्स डील किए जाते थे और प्रोविंशियल लेवल पे भी, अप टिल 1909। बट 1919 ने क्या किया, सो पहला पॉइंट, इट डिवाइडेड
the subjects in at central एंड प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए इसने, डिवाइडेड दी सब्जेक्ट। तो सेंट्रल पे कुछ सब्जेक्ट, प्रोविंशियल पे कुछ सब्जेक्ट, डिवीजन हो गया पावर्स का, जो अभी तक नहीं था डिवीजन। तो जो आज भी डिवीजन है, सेंट्रल पे अलग सब्जेक्ट्स हैं, सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ये 1990 से इंट्रोड्यूस हुआ था। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल अभी तक नहीं था, अभी तक एक ही लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स थी, वही सेंट्रल गवर्न करता था और वही प्रोविंसेस भी गवर्न करते थे। वो सेंटर के ऊपर था गवर्नर जनरल की वो प्रोविंसेस को कौन से सब्जेक्ट्स देता है, बट इसने डिमार्केट कर दिया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड सेकंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया ट्रांसफर्ड पे और रिजर्व्ड। इसकी को कहते हैं डायआर्की। डायआर्की मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। ठीक है, तो ट्रांसफर्ड गवर्न करेंगे गवर्नर, गवर्नर जो थे विद द हेल्प ऑफ so transferred governor with the help of his council of ministers। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ मेंबर्स हु विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर उनको अपॉइंट करेगा एज मिनिस्टर और उसके थ्रू गवर्न करेगा जो मेंबर्स ऑफ, और ये डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली being nominated by governor as his council of ministers, and governor with the help of his council of ministers will govern the transferred subject, and reserved governor with the help of his एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। ठीक है ना, जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर की उस पर्टिकुलर प्रोविंस में, तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जो नॉमिनेट करता है गवर्नर, वो मेंबर्स गवर्न करेंगे हेडेड बाय द गवर्नर। गवर्नर को गवर्न करेगा विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स रिजर्व। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे फाइनेंस वाला, डिफेंस, ठीक है ना, कम्युनिकेशंस, ठीक है, जस्टिस, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे ट्रांसफर्ड में है, सॉरी रिजर्व्ड में है। तो इंपॉर्टेंट वाले फाइनेंस वाले, एंड ट्रांसफर्ड में क्या है, पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट। सो दी सब्जेक्ट्स आर इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, डेवलपमेंटल रिलेटेड, वाइल फाइनेंस रहेगा रिजर्व में। तो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर इन रिजर्व विच आर गवर्न बाय द गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर। एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स आपको पता है, दीज आर द ऑफिशियल मेंबर्स, वाइल दी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ पब्लिक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उनको मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे उनमें से, और गवर्नर ट्रांसफर्ड जो कि लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं गवर्न करेगा। तो ये डायरार्की इंट्रोड्यूस की गई जो पूरी तरीके से फेल हो गई वहां पे। इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जो डायरार्की इंट्रोड्यूस की थी, गवर्नेंस को डिवाइड किया था, कुछ गवर्नेंस ग्रुप ए करेगा, कुछ गवर्नेंस ग्रुप बी करेगा, पूरी तरीके से फेल हो गई और स्थिति और विकट हो गई इसकी वजह से प्रोविंसेस में। ठीक है, वो हमारा परव्यू में नहीं है, वो हिस्ट्री में नहीं है, वो पॉलिटी में है, सॉरी पॉलिटी में नहीं, हिस्ट्री में है। हम तो अभी पॉलिटी देख रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस जानना कि डायरार्की इसने इंट्रोड्यूस की थी प्रोविंशियल में। ठीक है, डायरार्की मीन्स ट्रांसफर एंड रिजर्व्ड। और उसके अलावा बाइकैमरलिज्म इसने इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल लेवल पे। प्रोविंसेस पे तो वही था लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो यूनिकैमरलिज्म एट प्रोविंसेस
एंड बाईकैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल, यानी कि दो हाउसेज हो गए सेंट्रल लेवल पे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको कहेंगे अपर हाउस और ये लोअर हाउस हो गया। ठीक है, इसमें मेंबर्स हो गए 144, इसमें मेंबर्स हो गए 60। और इसमें से मेजोरिटी 103 के आसपास इलेक्टेड होंगे, इसमें भी मेजोरिटी इलेक्टेड होंगे, मेजोरिटी इलेक्टेड एंड रेस्ट नॉमिनेटेड, रेस्ट नॉमिनेटेड। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। उसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शंस का मैंने प्रोविजन बताया ही था। उसने मुस्लिम्स को कम्युनल इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया था, उसने मुस्लिम्स को दिया था कम्युनल इलेक्टोरेट एक्सटेंडेड। इसने किस किस को दिया? मुस्लिम्स को बरकरार रखा, क्रिश्चियंस को बढ़ा दिया, यूरोपियंस, सिख्स और एंग्लो इंडियंस। ठीक है, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 9 मेंबर्स मैंने आपको बताए थे, 9 मेंबर्स कैसे? 1 + 7 + 1 + 1। 1 क्या था? वाइसरॉय, 7 पोर्टफोलियो मेंबर्स, 1 कमांडर इन चीफ एंड 1 गवर्नर, जहां पे वो मीट करेगा, गवर्नर ऑफ प्रोविंस वेयर काउंसिल मीट्स। ठीक है, अब इस 7 में से 3 मेंबर्स आउट ऑफ 7 वर टू बी इंडियंस। 3 इंडियंस हो गए थे, पहले एक था, इसने 3 बढ़ा दिया। 3 मेंबर्स आउट ऑफ 7 वर टू बी इंडियंस, 3 मेंबर्स कर दिए इंडियंस। और साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स कितने होंगे, ये गवर्नर जनरल या वाइसरॉय डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम 8, मैक्सिमम 12 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स थे? 8। इसमें 10 मेंबर्स थे। तो ये जो मेंबर था, ये तो वो था, ये परमानेंट नहीं था, ये तो जहां पे वो मीट करेगा वहां पे वो एक मेंबर हो जाएगा। ठीक है, बट परमानेंट मेंबर्स कितने थे? 7 + 1 + 1 9। तो इन एडिशन टू गवर्नर जनरल 8 मेंबर्स होंगे, तो 8 हो गए। बट ये बढ़ा भी सकता था वाइस रॉय, 8 से 12 तक कर सकता था। एंड 3 इंडियंस थे।
इंडियंस भी वो अपने हिसाब से कितने इंडियंस अपॉइंट होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये वॉइसरॉय के परव्यू में आता था, और वॉइसरॉय ने 3 इंडियंस अपॉइंट किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया था कि इसने लिमिटेड फ्रेंचाइज इसने दी थी, है ना, डायरेक्ट इलेक्शंस थे तो लिमिटेड फ्रेंचाइज दी थी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ओनरशिप और टैक्स कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इनके बेसिस पे फ्रेंचाइज इसने लिमिटेड दी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट ये नीचे लिख देता हूं। इसने क्या किया था, एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ये अपॉइंट किया था इसने इस एक्ट में। एक नया ऑफिस क्रिएट किया था, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पावर्स कर्टेल कर दी थी, और एक ऑफिस ऑफ इंडिया इन लंदन क्रिएट किया था। ठीक है, देन इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। दिस एक्ट मेक प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन इसने किया था फॉर कंडक्टिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। और फाइनली 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुआ। सो फाइनली सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश इन 1926। ठीक है, एक पॉइंट तो ये था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश हुआ। साथ में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का प्रोविजन किया था, एक अकाउंट्स कमेटी स्टैब्लिश होगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखा समिति समथिंग। ठीक है, 1921 में ये क्रिएट की गई, वो भी इस एक्ट के माध्यम से क्रिएट हुई। और एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस क्रिएट हुई क्रिएटेड। ठीक है, वो भी इसी एक्ट के माध्यम से क्रिएट की गई। ये नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 19 इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम अभी तक साइमल्टेनियसली इंडिया और लंदन में होता था, टू बी कंडक्टेड इन इंडिया, टू बी ओनली कंडक्टेड इन इंडिया, इंडिया में ही कंडक्ट होगा, इस एक्ट ने बोला। 1892 के माध्यम से बहुत इंडिया लंदन दोनों में कंडक्ट हो रहा था, बट इस एक्ट ने केवल इंडिया में कर दिया। एंड 1922 में इलाहाबाद में कंडक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, केवल इन इंडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट था। एंड बजट
बजट जो था मैंने आपको बताया था कि 1909 के माध्यम से बजट पे आप डिस्कशन कर सकते हो, बजट पे आप रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो, ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यू कैन आस्क, बट दिस एक्ट मेक 25% बजट वोटेबल, तो आप वोट भी कर सकते हो, अभी तक वोटेबल नहीं था, एंड 75% नॉन वोटेबल, अभी तक वोटेबल नहीं था, रेजोल्यूशंस मूव कर सकते थे बजट में, रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे बजट में, यानी कि कुछ अमेंडमेंट आप इंट्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है, बट आप वोट नहीं कर सकते थे बजट के ऊपर, यानी कि पर्टिकुलर मान लो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, डिपार्टमेंट को मान लीजिए 100 रुपये देने हैं, तो 100 रुपये देने हैं, 90 देने हैं, 80 देने हैं, वो अभी तक नहीं था, तो अभी 25% वोटेबल कर दिया था, यानी कि उसको कितने पैसे देने हैं किसी डिपार्टमेंट को, 25% तक वोटेबल कर दिया था, यानी कि वोट किया जाएगा तो उसको उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना वोट में पास होगा, ठीक है, 75% नॉन वोटेबल। बट अभी भी क्या था, गवर्नर जनरल फाइनल अथॉरिटी था, तो फाइनल अथॉरिटी था, यानी कि जो भी कानून पास होएगा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट से, वो उसको वीटो कर सकता था, और बहुत सारे कानून ऐसे थे जो बिना ये गवर्नर जनरल के परमिशन के बिना आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। सिमिलरली प्रोविंसेस में भी यही था, गवर्नर वीटो कर सकता था, और गवर्नर कोई भी कानून इन दी प्रोविंसेस इट कैन रिकमेंड for the consideration of the governor general or for the viceroy for the consideration of him, and even after passing if law is passed it can refer it to the governor general for his assent, ठीक है, तो फाइनल वीटो अथॉरिटी क्या थी, गवर्नर जनरल प्लस गवर्नर्स के पास थी अभी भी कानून पास होने, ठीक है, और वो वीटो कर सकते थे, और आप गवर्नमेंट को अभी भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे उसकी पॉलिसीज को, और गवर्नर जनरल प्लस हिज काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नॉट रिस्पॉन्सिबल टू, ठीक है ना, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, नहीं थी लेजिस्लेटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, सिमिलरली गवर्नर और उसकी काउंसिल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, ये अभी भी इशूज थे। और साथ में वुमेन को फ्रेंचाइज फॉर दी फर्स्ट टाइम, वुमेन गिवन फ्रेंचाइज फॉर दी फर्स्ट टाइम, ठीक है। और साथ में 10 साल बाद इसके रिव्यू की भी रेजोल्यूशन दिया गया, इसमें रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिव्यू आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद इसका रिव्यू होगा। साइमन कमीशन बैठा था रिव्यू करने के लिए 1927 में, वो 8 साल बाद ही बैठ गया था, वो हम डिस्कस करेंगे तो, अगले लेक्चर में, बट so this is all about Government of India Act 1919. In the next lecture we will study the Government of India Act 1995, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So if you like my lecture, kindly like it and subscribe to my channel. Thank you very much.